available outside. And one of the most important opportunity which we are giving to you from our esteemed Government Degree College, Jehirabad side. So, by joining this college, what you are going to get and what you are going to achieve in your life and in your future career. That's why as an orientation program, orientation का मतलब होता है कि information share करना. Orientation అంటే important information లో మీకు తెలియజేయడం. ఇంటర్మీడియట్ అయిపోతుంది ఒక 2 నెలల్లో, ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి? Okay, many thoughts will be arising in your mind. So we are going to share the information and we are going to clarify each and every doubt which is happening in your mind. Because intermediate is a junction point from school to college level. This was also called a pre-university course. So we are, giving you an important opportunity to acquaint yourself with this college program. Now, see, best wishes to you from your successful completion of intermediate education. We hope that whoever is sitting in this hall and outside, everybody would pass your intermediate course. And after that, important points would be remained. Prepare well for your IPE 2026 examinations, which are going to be starting from 26 February 2026 up to 18th March 2026, and appear for your practical exams. So from our side, from our college principal side, we are giving our best wishes for your successful completion of intermediate course. Next, intermediate के बाद क्या है? What is there after intermediate? So बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इंटरमीडिएट एग्जाम लिख लिया, लिखने के बाद चलो रिजल्ट के लिए वेट करते हैं. So they waste time for waiting for the result. इंटरमीडिएट एग्जाम कंप्लीट होने के बाद जो रिजल्ट अनाउंसमेंट का टाइम है, वो जो गैप पीरियड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड इन योर लाइफ. So do not waste your holidays. Get computer knowledge by attend computer, because आजकल जिसको कंप्यूटर नहीं आता है, that person will be illiterate. చదువు రాని వ్యక్తితో సమానం. సో ఈ టైంలో యూ కెన్ జాయిన్ ఏ కంప్యూటర్ కోర్స్ లైక్ డిప్లొమా ఇన్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ ఇన్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్, ఎంఎస్ వర్డ్, समथिंग लाइक दैट, एंड यूटिलाइज दैट टाइम. एंड आजकल का जमाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल का जमाना है रोबोटिक्स, आजकल का जमाना है नैनो टेक्नोलॉजी. देखा, मतलब वो मिमिक्री कर रहा है कि आने वाला टाइम में वो क्या बनेगा. ही इज शोइंग हिज फ्यूचर. ठीक है. सो या भाई, आपका आप डिग्री कॉलेज में जेम हो जाओ, उतना मुसीबत आपको नहीं आएगा, हम सीधा कर देंगे. ठीक है, आपका परेशानी हम समझते हैं. सो दैट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंट कोर्स. एंड या फर्दर व्हाट यू नीड टू डू, या try to have clear goal about your lives. Intermediate के बाद అమ్మా బైపీసీ, ఎంపీసీ, సిఈసి, హెచ్ఈసి మీరు ఉండొచ్చు. ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏమిటంటే, మీ జీవితంలో మీకంటూ ఒక ఉద్దేశం ఉందా లేదా, దట్ ఈస్ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. अगर आपके जिंदगी में आपका कोई गोल नहीं है, एम नहीं है, तो आप लाचार हैं. So you must have your own goal and determined ambition in your life. Intermediate कोई मामूली कोर्स नहीं है, ये जिंदगी को डिटरमाइन करने वाला कोर्स है. Next, yeah. So do not stop your studies. So बहुत सारे बच्चे इंटरमीडिएट के बाद एजुकेशन रोक देते हैं, मगर इम्पोर्टेंट बात है, असली एजुकेशन
जो है वो इंटरमीडिएट के बाद बिगिन होती है, वो भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद में ही बिगिन होती है। ये बात आप डिटरमाइन करने के लिए आपका सीनियर्स लोगों से पूछना है। यू कैन डिसाइड इट, यू कैन डिटरमाइन इट। यस, सो आफ्टर इंटरमीडिएट తర్వాత హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వెళ్ళడము ప్రతి ఒక్కరికి కూడా कंपलसरी। इंटरमीडिएट के बाद हायर एजुकेशन जाना बहुत जरूरी है। आजकल के जमाने में इंटरमीडिएट खाली 10th क्लास इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है। एक मामूली सी भी जॉब चाहिए तो आपको डिग्री होना चाहिए। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इंडिया में खास करके इंटरमीडिएट के बाद जो डिग्री करते हैं, पीजी करते हैं, उसको बोलते हैं हायर एजुकेशन। सो इंटरमीडिएट के बाद आप डिग्री ज्वाइन होते हैं तो आपको कहलाएंगे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हायर एजुकेशन। నేను హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ స్టూడెంట్ అని మీరు సగర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు। नेक्स्ट, सो आप लोग बाईपीसी वालों को तो नीट है, मेडिसिन है, एमबीबीएस है, बीडीएस है, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेस है, अलग अलग इंपॉर्टेंट बड़े से अपॉर्चुनिटीज है। या बाईपीसी वाला रेज योर हैंड्स। या अम्मा आप नीट लिखो, मेडिसिन पढ़ो। अगर नीट नहीं आया आपके लिए हम लोग मतलब इधर तैयार है आपका फ्यूचर बनाने के लिए। आप आ जाओ, हमारा कॉलेज ज्वाइन हो जाओ, आपके फ्यूचर हमारे हाथ में है। वी कैन मेक योर फ्यूचर ब्राइटर, इट इज अवर गारंटी। एंड नेक्स्ट, एमपीसी वालों के लिए बीई, बीटेक, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंजीनियरिंग कर सकते हैं। या बाईपीसी में बीएएमएस आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेस, बीयूएमएस यूनानी मेडिकल साइंसेस, बीएचएमएस होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेस एंड बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, एमएलटी का मतलब लैब टेक्नीशियन, लाइफ साइंसेस, फार्मेसी, बी फार्मा, फार्मा डी, ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज आर देयर। यू कैन जॉइन देम। एंड एट द सेम टाइम या बीएड इज फॉर एवरीबॉडी। सो besides all of them, what I say, in degree college we are offering various courses also. So for MPC, BE, BTech, Bachelor of Computer Applications, BCA के बाद MCA भी कर सकते हैं आप। So that is what I say, important opportunity for MPC students. CEC, Bachelor of Computer Applications, और उसके बाद मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं, ICWA कर सकते हैं। So those are the opportunities. नेक्स्ट, डिप्लोमा इन एजुकेशन। आप एमपीसी, बाईपीसी, सीईसी, एचईसी कोई भी हो, यू कैन ज्वाइन फॉर डिप्लोमा इन एजुकेशन प्रोग्राम, दैट इज फॉर टीचर्स। मैडम नेक्स्ट, या नेक्स्ट, కోర్సెస్ ఆఫ్టర్ ఇంటర్మీడియట్ ఎట్ జీడీసీ జహీరాబాద్. ఇది ఇంపార్టెంట్ చూడండి, అందరి చూపులు ఆ బోర్డు మీద ఉండాలి. దిస్ ఈస్ ద సెంట్రల్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ ఎంటైర్ ప్రెజెంటేషన్. ఐ रिक्वेस्ट योर अटेंशन. सो डिग्री का कोर्स होता है 3 इयर्स का. सो आफ्टर 3 इयर्स you will be called graduate. Now you are not graduate, just intermediate student. So after 3 years you will be called graduate. And we are offering BA, Bachelor of Arts, History, Political Science, Economics. All HEC, CEC and YP students are eligible to take admission in BA. MPC भी ले सकते हैं BA में. Okay? So all are welcome. और हमारा BA का फैकल्टी, BA का लेक्चरर्स बहुत शानदार लेक्चरर्स है, PhDs है, पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा स्टेट में मशहूर है. उनका रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश हुआ है. एक से एक. आप धुरंधर मूवी देखे हैं? हाँ. सो एक से एक धुरंधर है इधर फैकल्टी मेंबर्स. सो आप भी धुरंधर बन जाओगे. नेक्स्ट, कॉलेज इज ऑफरिंग. कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो उर्दू मीडियम हूँ, मैं तो मतलब इंग्लिश मीडियम हूँ. भाई हमारा पास उर्दू मीडियम का भी BA कोर्सेस है, इंग्लिश मीडियम का भी BA कोर्सेस है. और BA पढ़ते पढ़ते आप IAS IPS के लिए भी सिलेक्ट हो सकते हैं. IAS IPS के लिए भी आप मतलब प्रिपेयर हो सकते हैं. हम लोग गाइड करेंगे आप लोगों को. यस. नेक्स्ट, BA में HEP में 60 सीट्स अवेलेबल.
और एक बात है, बीए वाले मैथ्स के साथ पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जर्नलिज्म ये भी मतलब ग्रुप में ले सकते हैं। ये नहीं कि बीए का मतलब पूरा हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ये नहीं है, मैथ्स के साथ भी बीए कर सकते हैं। नेक्स्ट बीए एचईपी तेलुगु मीडियम 60 सीट्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। बीए एचईपी उर्दू मीडियम 60 सीट्स। अमा उर्दू मीडियम वाले हाथ उठाइए। यस, वेरी गुड। बीए उर्दू मीडियम के लिए 60 सीट्स है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री में उर्दू मीडियम का फैकल्टी है, पॉलिटिकल साइंस में है, इकोनॉमिक्स में उर्दू मीडियम का फैकल्टी है। मेरा देखिए, यस। सो बीए पास होने के बाद क्या कर सकते हैं? बीए 3 साल कर दिया, 3 साल का मतलब है 6 सेमिस्टर्स। ये 6 सेमिस्टर के बाद क्या कर सकते हैं? सो आप बीईडी लिख सकते हैं। बीईडी 2 साल का होता है, डीईडी 4 साल का होता है। दैट इज द डिफरेंस। एंड नेक्स्ट उसके बाद आप एमए भी कर सकते हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री, एमए इकोनॉमिक्स फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटीज। मित्रुलारा, మా స్టూడెంట్స్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, సెంట్రల్ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, अलग अलग यूनिवर्सिटी में हमारा स्टूडेंट्स है। कल उनका प्लेस आप ले सकते हैं 3 साल के बाद। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ आवर कॉलेज। नेक्स्ट उसके बाद पीएचडी भी कर सकते हैं, पोस्ट डॉक्टरल, डॉक्टर इन फिलॉसफी। पीएचडी मतलब रिसर्च कर सकते हैं। आपको मालूम है डिग्री कॉलेज जहीराबाद का स्पेशलिटी, इधर हर एक फैकल्टी पीएचडी से नवाजा गया है। तो आप इधर एडमिशन लेने से रिसर्च कैसे कर सकते हैं, उसमें भी आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, आगे का रिसर्च। यस, అమ్మా ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం, మీలో చాలా మంది సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్, కానిస్టేబుల్స్, సివిల్ సర్వీసెస్, గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3 రకరకాల ఎగ్జామ్స్, బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్, ప్రొఫెషనల్ ఆఫీసర్స్, రకరకాల ఎగ్జామ్స్ కోసం మీరు ప్రిపేర్ కావాలనుకుంటున్నారు కదా. సో మీ కళ మా ఆశయం. ఓకే, సో మీ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ కావడానికి ఈ యొక్క బిఏ గ్రూప్ ఈ కాలేజీలో నిర్వహించేటువంటి కోర్సులన్నీ కూడా సహకరిస్తాయమ్మా. నెక్స్ట్ బీకామ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్. వినండి, ఇది స్పెషల్ కోర్సు. మొత్తం కంప్యూటర్ అంతా కూడా A to Z మీకు నేర్పించబడుతుంది ఇక్కడ. బీకామ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ జాయిన్ అవుతాయి. బీకామ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ 3 years and all CEC, BIPC, MPC students. CEC, BIPC, MPC students are eligible to take admission into BCom computers. And college is offering BCom with computer applications in English, Telugu, Urdu medium. जो उर्दू मीडियम वाले हैं पूरा तेलंगाना स्टेट में बीकॉम कंप्यूटर्स इंग्लिश मीडियम में इस कॉलेज में है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये मौका मत खोना हाथ से, एक बार निकल गए तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। अगर जीडीसी जहीराबाद का एडमिशन नहीं लिया तो जिंदगी फटास। यस, नेक्स्ट नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन बीकॉम विद कंप्यूटर एप्लीकेशंस 60-60. सो बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस 60, उर्दू मीडियम में 60, इंग्लिश मीडियम 60, उर्दू मीडियम 60, तेलुगु मीडियम मेरा मालूम तो। सो इंग्लिश और उर्दू मेरा या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। अगर बीकॉम 3 साल कर लिया, कंप्यूटर सीख लिया, सर्टिफिकेट ले लिया तो मुझे क्या मिलेगा? दैट इज द क्वेश्चन यू शुड आस्क। आपको मिलेगा, आप बीईडी कर सकते हैं। बीईडी मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो बीएससी लिखने के लिए जरूरी है। और आप एमकॉम कर सकते हैं, मास्टर ऑफ कॉमर्स, वो 2 साल का कोर्स होता है, पीजी कोर्स बोलते हैं उसको। और पीएचडी कर सकते हैं कॉमर्स में, मतलब अलग अलग कोर्सेस में, अलग अलग टॉपिक्स में आप पीएचडी कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में।
और नीचे जो पॉइंट है एलिजिबल फॉर सीए चार्टेड अकाउंटेंसी, सीए बन गया तो आप एक केस, एक आईटीआर सबमिट करने के लिए 5 से लेकर 10,000 रुपए डिमांड कर सकते हैं। महीने का आपका इनकम होगा कम से कम 10 लाख रुपया अगर सीए कर लिया तो। मगर उसके लिए आपको जीडीसी जहीराबाद में एडमिशन देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट, एंड यू विल ऑल्सो गेट गवर्नमेंट जॉब्स, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएएस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, ये सब में भी एडमिशन ले सकते हैं आप। नेक्स्ट बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। అమ్మా బీఎస్సీ వాళ్ళు, ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు, తెలుగు మీడియం వాళ్ళు అందరూ చేతులు, ఉర్దూ మీడియం వాళ్ళు బీఎస్సీ వాళ్ళు ఎంతమంటారు? బీఎస్సీ बाईपीसी मतलब फ्यूचर बीएससी बोल रहा हूँ मैं। यस, वेरी गुड। यस, सो बीएससी 3 years, इंग्लिश, तेलुगु, उर्दू मीडियम। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बीएससी उर्दू मीडियम कहीं भी नहीं है। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह उर्दू मीडियम में नहीं है, मगर हमारा कॉलेज में है। अच्छी मतलब ट्रेन्ड फैकल्टी है, पीएचडी कर रहे हैं कुछ लोग, नेट सेट क्वालिफाई फैकल्टी है। सो उसका आप लोग जो है मतलब उनका सर्विसेज यूटिलाइज करके आपका फ्यूचर बना लेना। और नंबर ऑफ सीट्स बीएससी इंग्लिश मीडियम 120, मतलब बीजेड सीएस का मतलब है कंप्यूटर साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस అమ్మా। ఒకటేమో బॉटनी, జూలॉजी, కెమిస్ట్రీ, బॉटनी, జూలॉजी, కంప్యూటర్ సైన్స్। నెక్స్ట్ బీసీసీఎస్, బॉटनी, కెమిస్ట్రీ, కంప్యూటర్ సైన్స్। సో ఎంత మంచి అవకాశం తెలుసా? మీ మనసుకు నచ్చినటువంటి కోర్సు ఎక్కడైనా ఉంది అవైలబుల్ అంటే అది గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ జహీరాబాద్ లోనే। ఓకే, तालियां। ऐसे बैठे हैं जैसे मतलब 2 दिन हो गए खाना खाते। यंग स्टूडेंट है, टीनेज है, बबलिंग होना चाहिए। और एक बार तालियां मारो। नेक्स्ट, बीएससी उर्दू मीडियम 60 सीट्स, बीएससी एमपीसी एमपीसीएस रेगुलर 60 सीट्स। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट चेंज। नेक्स्ट, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज फॉर बीएससी स्टूडेंट्स, पीईडी कर सकते हैं। नेक्स्ट, एमएससी कर सकते हैं अम्मा, एमएससी मास्टर ऑफ साइंस। एक बात सुनो, अटेंशन, एमएससी बॉटनी, एमएससी जूलॉजी, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी मैथमेटिक्स, ये सब कर सकते हैं आप। एमएससी करने के बाद अगर नेट क्वालिफाई हुआ, सेट एग्जाम क्वालिफाई हुआ तो दूसरा डिग्री कॉलेज में हमारा जैसा लेक्चर भी बन सकते हैं। वो अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है? गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद में है। तालियां। नेक्स्ट, पीएचडी कर सकते हैं सब्जेक्ट में। पीएचडी मतलब डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, रिसर्च कर सकते हैं। और बीएससी के बाद आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईईएस, नेशनल लेवल जॉब्स, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, लोकल बॉडीज गवर्नमेंट जॉब्स आप पा सकते हैं अगर आप जीडीसी जहीराबाद में एडमिशन लेंगे तो। यस, yes, overall degree seats in first year degree for 2026 to 28 batch, total हमारा पास 540 सीट्स अवेलेबल है टोटल। BA, HEP, BA, HEP उर्दू मीडियम, तेलुगु मीडियम, बीकॉम इंग्लिश मीडियम, बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस उर्दू, बीएससी, बीजेडसी, बीएससी इंग्लिश मीडियम, बीएससी एमपीसी, एमपीसीएस, टोटल 540 सीट्स अवेलेबल है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सुनो। पूरा संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में
जहीराबाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एडमिशंस का रेशियो में नंबर 1 में है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन टू टेक डिग्री एडमिशन। सो डिग्री एडमिशन कैसा लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है। As soon as the intermediate results are declared, take a photocopy of pass results. Intermediate results आते ही उसका एक प्रिंट आउट लेके अपने पास रख लेना। और टीसी बोनाफाइड, आपका जो ओरिजिनल टीसी है और बोनाफाइड है उसको हाथ में रख लेना, रेडी रख लेना। और वेट फॉर दोस्त, DOST, दोस्त। ये दोस्त के मतलब दोस्त, थ्रू द दोस्त ओनली यू विल गेट एडमिशन टू डिग्री कॉलेजेस। दोस्त का मतलब है डिग्री ऑनलाइन एडमिशन तेलंगाना। यस, टीसी बोनाफाइड और आपका इंटरमीडिएट का पास रिजल्ट का प्रिंट आउट, ये तीनों चीज आप रेडी रख लेना ये एडमिशन के लिए। और ओके, या दोस्त मेरे साथ बोलो, DOST, दोस्त। मुझे सुनाई नहीं दिया, DOST, दोस्त। इंटरमीडिएट के बच्चे हैं जैसा, मतलब बिल्ली जैसा आवाज है। DOST, दोस्त। दोस्त, दोस्त, दोस्त मेरा दोस्त। Okay. So, yeah. How and when to apply in the college gate admission? అమ్మా ఈ బోర్డు మీద చూపిస్తున్నటువంటి స్క్రీన్ ఉంది కదా, नंबर 1, ये फोन नंबर विद आधार लिंक। आपके पास जो फोन नंबर है वो आधार लिंक के साथ होना चाहिए। అమ్మా మీ దగ్గర ఉన్న ఫోన్ నెంబర్ ఉంది కదా, దానికి ఆధార్ లింక్ ఉండాలి। నెక్స్ట్, ఆధార్ కార్డ్, ఒరిజినల్ ఆధార్ कार्ड। इंटरमीडिएट रोल नंबर याद रहना चाहिए, इंटरमीडिएट रोल नंबर, SSC रोल नंबर, इंटरमीडिएट रोल नंबर याद रहना चाहिए। SSC जेरॉक्स कॉपी। नेक्स्ट, इनकम सर्टिफिकेट फ्रेश आफ्टर अप्रैल 2026। अभी जनवरी का महीना चल रहा है, सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 1 के बाद इनकम सर्टिफिकेट उस टाइम का आपके हाथ में होना चाहिए। और नेक्स्ट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी कम्युनिटी आप बिलोंग करते हैं वो कम्युनिटी का कम्युनिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सिर्फ दोस्त में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 2000 नहीं, 1000 नहीं, 500 नहीं, सिर्फ और सिर्फ कितना, जोर से 200। आप आ जाओ हमारे पास, आपको 400 बना देंगे। नेक्स्ट, एडमिशन प्रोसेस विल बी डन एट अवर कॉलेज हेल्प डेस्क। वो जो ऊपर का जो सर्टिफिकेट्स है ना वो लेके हमारे पास आ जाना, बस आपका एडमिशन करवा देंगे, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात है, डिग्री में आप या इंग्लिश मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो, तेलुगु मीडियम हो, कुछ भी हो, मगर आपसे इंग्लिश में बात करवाने का तरीका हम बता देंगे। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस कॉलेज। So now admission process. As per the course schedule, you will get message on your phone number that you have been allotted. So आपका फोन नंबर पे आपका मैसेज आएगा। नेक्स्ट, OTP आएगा, सो OTP को सिक्योर करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, एट द गिवन डेट यू हैव टू रिपोर्ट टू द कॉलेज विद योर ओरिजिनल टीसी। जब डेट अनाउंस होता है, डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, మీ ఒరిజినల్ టీసీ, బోనాఫైడ్,
xerox copies of SSC इंटरमीडिएट मार्क्स मेमो कैस्ट सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट सब लेके हमारे पास आ जाना, हम स्क्रूटनाइज करेंगे और आपको एडमिशन देंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात है, अम्मा सुनो सुनो, डिग्री कॉलेज जहीराबाद में 3 NSS यूनिट्स है, 3 NSS यूनिट्स। हर साल विंटर कैंप चलता है और उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट से पीजी एडमिशन में रिजर्वेशन भी है NSS कोटे पे। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर कॉलेज। तालियां। या फीस डिटेल्स, आप लोगों का एक गुड न्यूज है, आपके पास अगर इनकम सर्टिफिकेट है तो कोई भी फीस नहीं है। आप मतलब आपका बैग टिफिन बॉक्स लेके कॉलेज आके क्लास में बैठ सकते हो। कॉलेज का टाइमिंग है सुबह 10 बजे से 4:30 बजे, आप 1 घंटा एक्स्ट्रा भी रह सकते हो। और लाइब्रेरी है, बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, सुबह 9:30 से 4:30 बजे तक ओपन रहता, आप जाके पढ़ सकते। पेपर्स है, टेक्स्ट बुक्स है, रेफरेंस बुक्स है, कोई भी कॉलेज में नहीं है मगर GDC जहीराबाद में है। तालियां। नेक्स्ट ओके, डिग्री फाइनल क्लासेस में कौन सा हमारा मोटो है एंटर टू लर्न लीव टू सर्व। मेरे साथ बोलो, एंटर टू लर्न लीव टू सर्व। और एक बार, एंटर टू लर्न लीव टू सर्व। आखिरी बार, एंटर टू लर्न लीव टू सर्व। वेरी गुड, वेरी गुड, आपके अंदर जोश आ गया। You will be the most fortunate student. అమ్మా, డిగ్రీ కాలేజ్ జహీరాబాద్ లో అడ్మిషన్ దొరికితే జీవితంలో మీ అంత అదృష్టవంతులకి ఎవరుండరు। ओके, आप खुश नसीब होंगे। अगर एडमिशन नहीं मिला तो बदनसीब होंगे। ओके, तालियां। 1991 में कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ, तो कितना साल हुआ बताओ। 2026 है, 1991, तो कितने साल हुआ? 36। आपका उम्र होगा 16 साल, 17 साल, 18 साल। आपका उम्र से डबल उम्र है कॉलेज का। और इम्पोर्टेंट बात बोलो, पूरा इंडिया में, मित्रों सुनो, पूरा इंडिया में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितना भी यूनिवर्सिटीज है, उस यूनिवर्सिटीज में उस्मानिया यूनिवर्सिटी टॉप 10 में आता है। और हमारा कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। हमारा कनेक्शन किससे है? बोलो, उस्मानिया यूनिवर्सिटी। और तो है कॉलेज का टाइमिंग्स 10 to 4:30। सो स्ट्रिक्टली द कॉलेज आवर्स विल बी ऑब्जर्व। नेक्स्ट, लंच टाइम 1:20 से लेकर 2 बजे तक 40 मिनट का टाइम है। पेट भर के 2 बार खा सकते हो। और हमारा कॉलेज में स्टूडेंट्स अपना शेयर करके भी खा सकते हैं। जहीराबाद में मतलब GDC जहीराबाद में एडमिशन लेने से दूसरों को टिफिन बॉक्स भी मिलेगा आपको। नेक्स्ट, या इंग्लिश तेलुगु उर्दू मीडियम में BA BCom BSc मैडम। नेक्स्ट मैडम, सेमिस्टर सिस्टम इंटरमीडिएट లో ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కదా, అవునా కదా? ఇక్కడ డిగ్రీకి వచ్చేటప్పటికి ఇయర్ సిస్టమ్ కాదమ్మా, సెమిస్టర్ సిస్టమ్. ఒక సెమిస్టర్ 6 నెలలు ఉంటుంది, అంటే 3 ఇయర్స్ కదా,
3 2s సో 6 సెమిస్టర్ డిగ్రీలో ఉంటాయమ్మా. ప్రతి సెమిస్టర్ తర్వాత సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్, డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ చేతికి రావాలి అంటే మొత్తం 6 సెమిస్టర్స్ పాస్ కావాలి. లేదు సార్ నేను 4 అవుతా, డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ రాదు. లేదు సార్ నాకు ఒక్కటి వదిలిపెట్టండి, నేను 5 పాస్ అవుతా, డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ రాదమ్మా. 6 సెమిస్టర్స్ పాస్ కావాలి. డిగ్రీలో ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ అది. దాని ఉద్దేశం ఏంటి తెలుసా? సబ్జెక్ట్ లో మీరు పర్ఫెక్ట్ కావాలని దాని యొక్క ఉద్దేశం. ఇలా డిగ్రీ అయిపోతే అలా జాబ్ రావాలి. డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ రాసేందుకు సర్టిఫికేట్ వచ్చింది, ఇక్కడ నుంచి గవర్నమెంట్ నుంచి జాబ్ సర్టిఫికేట్ కూడా రావాలి. దట్ ఈస్ ద మోటో ఆఫ్ అవర్ కాలేజ్. ఎంప్లాయబిలిటీ స్కిల్స్. ఇక్కడ మనకు జేకేసీ అని ఉంది, టిఎస్కేసీ, తెలంగాణ స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్ సెంటర్. మొత్తం 65 కంప్యూటర్లు ఉన్నాయి మన కాలేజీలో. కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్, ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, లైఫ్ స్కిల్స్, ఇవన్నీ నేర్పిస్తాం మీకు. ఖాళీగా సిబిసిఎస్ సిస్టమ్ అమ్మా, సిబిసిఎస్ సిస్టమ్ అని ఇక్కడ ఉంటుంది. సో క్రెడిట్ బేస్డ్ సిస్టమ్. सो इस कॉलेज का प्रिंसिपल साहब का नाम पता है आपको? हमारा प्रिंसिपल साहब का नाम है प्रोफेसर डॉक्टर असलम फारूकी सर. ओके, हमारा कॉलेज का धुरंधर है साहब. सो हर एक दिन साहब का स्पेशलिटी है, हर एक दिन स्टूडेंट से मिलते हैं, उनका जो प्रॉब्लम्स है, उनका जो मतलब इश्यूज है, वो खुद जाके पूछते हैं, वो खुद रिजॉल्व करते हैं. ही इज द मोस्ट स्टूडेंट फ्रेंडली प्रिंसिपल यू एवर फाइंड इन डिग्री कॉलेज सिनेरियो. एंड 24/7 अवेलेबल. हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में प्रिंसिपल साहब, लेक्चरर्स सभी जो है 24/7 आपको अवेलेबल रहेंगे. कभी भी आप इंटरेक्शन कर सकते हैं प्रिंसिपल के साथ और फैकल्टी मेंबर्स के साथ. नेक्स्ट बच्चे है सर. हाँ थैंक यू सर. बच्चे सर कम सर. प्रोफेसर लक्ष्य सर, तेलुगु प्रोफेसर, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन एंटायर तेलंगाना स्टेट. यस. नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री. या जोहर तहसीन मैडम, मसरत बेगम. मसरत मैडम, हाँ देखो अभी समझ में आया कि मसरत मैडम इधर नहीं बैठा, उधर बैठा, मतलब स्टूडेंट के साथ है. सो दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ अवर कॉलेज. ईच एंड एवरी फैकल्टी इज स्टूडेंट फोकस्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड, स्टूडेंट फ्रेंडली. अम्मा केमिस्ट्री लैब, सी हाउ वंडरफुल इट इज. डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, प्रीति मैडम. या बालाजी सर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, बालाजी सर. हाँ बालाजी सर फिजिक्स लैब में. ओके. नेक्स्ट, प्रवीण सर. या कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन लैब. आप कभी भी जाकर कंप्यूटर लैब में बैठ के कंप्यूटर सीख सकते हैं और टाइपिंग भी सीख सकते हैं. इस तरह डिग्री बाद में आप एडमिशन लेंगे तो. नेक्स्ट, रियाज खान सर, जुआलॉजी. नागराज सर, जुआलॉजी. डॉक्टर पीएचडी. ओके. नेहा अफरीन मैडम, जुआलॉजी. नेहा मैडम इधर ही था मैडम. ओके. सो जुआलॉजी मैडम. नेक्स्ट, जुआलॉजी लैब. देखो कैसे मतलब जुआलॉजी एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है, रिसर्च हो रहा है. हमारे कॉलेज में रिसर्च होता है, रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं कॉलेज से. नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी. ओके. देखो सर कितना सीरियस है. हाँ बॉटनी सर. ओके. सो आसमा बेगम. So these are the faculty members of botany. Botany lab.
सो बॉटनी लैब में माइक्रोस्कोप में देखो क्या देख रहे हैं, आपको भी देखना है क्या देखना है बोल के आपको अगर दिमाग में आ रहा है तो कॉलेज को आ जाना, दिखा देंगे. सो दैट इज बॉटनी लैब. नरहरि मूर्ति इंग्लिश फैकल्टी. नेक्स्ट अमीना सिद्दीका मैडम, माय कोलीग इंग्लिश. आई एम फ्रॉम इंग्लिश डिपार्टमेंट. आपको स्पोकन इंग्लिश सिखाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है. हाँ मुजफ्फर साहब प्लीज. हाँ मुझे मैडम हाँ HOD ऑफ उर्दू डिपार्टमेंट डॉक्टर इशरत मैडम. ओके या PhD. नेक्स्ट मुजफ्फर साहब. अगर आपको डिसिप्लिन सीखना है तो सर के पास आ जाए. ठीक है मुजफ्फर साहब. कॉमर्स PhD कर रहा सर, जब तक आपका एडमिशन हो जाएगा सर का PhD कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट सिद्धप्पा साहब, उनका मतलब मुलीग है, मिराजुद्दीन साहब है, मुबीन साहब है. ये सभी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी इन कॉमर्स. नाउ हिंदी राठौर साहब नहीं था. हाँ राठौर साहब बोलो. ठीक है సార్ సందర్భం అనుకోండి, అగ్గిపుల్ల సన్నగానే ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ హిస్టరీ సార్ ప్లీజ్. సార్ అమ్మా నిన్న ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో సెమినార్ జరిగింది. ఆ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ సెమినార్ లో బీసీ దగ్గర కూర్చొని, వైస్ ఛాన్సలర్ దగ్గర కూర్చొని సార్ పేపర్ ప్రజెంటేషన్ చేయించుకున్నారు. నెక్స్ట్ సత్యనారాయణ సార్ హిస్టరీ ఫ్యాకల్టీ, మోస్ట్ ఏబుల్డ్ పర్సన్. నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ రాములు సార్ ప్లీజ్. రాములు సార్ సార్ వచ్చేసి స్టేట్ లెవెల్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ క్వాలిఫై అయింది సార్. సార్ గారు PhD చేస్తున్నాడు. సార్ NCC ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్. నెక్స్ట్ ఫాతిమా మేడం. ఫాతిమా మేడం ఈ మధ్యలో అందించండి. ఎకనామిక్స్ నేర్చుకోవాలి, జీవితాన్ని బాగు చేసుకోవాలి అంటే మీరిద్దరు మీకు అవసరం. మీరు హైదరాబాద్ డిగ్రీ కాలేజీకి రండి. ఓకే కార్య. నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్ సార్, మా పెద్ద సార్ సురేందర్ సార్, డాక్టర్ పైల సురేందర్ సార్. సార్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో 2000 సంవత్సరంలోనే PhD చేసిన, అంటే 26 సంవత్సరాల క్రితమే PhD అయితే సార్ని. సో అంత ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాకల్టీ మన దగ్గర ఉన్నారు. నెక్స్ట్ ఇష్రత్ బేగం మేడం, ఓకే పొలిటికల్ సైన్స్ ఉర్దూ మీడియం. నెక్స్ట్ లైబ్రరీ, పెద్ద లైబ్రరీ ఉన్నాం. చాలా ఇంపార్టెంట్ పుస్తకాలు ఉన్నాయి, జర్నల్స్ ఉన్నాయి, న్యూస్ పేపర్స్ ఉన్నాయి, టాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి, కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి, ప్రింటర్ ఉంది. అవన్నీ మన లైబ్రరీలో ఉన్నాయమ్మా. అవన్నీ ఎవరి కోసం అంటే మా కోసం కాదు మిత్రులారా, మీకోసం. ఓకే సో దట్ ఈస్ చూడండి. ఓకే ఇదంతా కూడా లైబ్రరీకి వచ్చేటువంటి పుస్తకాలు అమ్మా. లైబ్రరీ వచ్చేసి మనకు 11,440 పుస్తకాలు ఉన్నాయి. 11,440 బుక్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ లైబ్రరీ. అవన్నీ కూడా మీకోసమే. నెక్స్ట్ మేడం దేవి మేడం గారు TSKC చెప్పిన కదా, మేడం TSKC ఇన్ఛార్జ్. మేడం దగ్గర దాదాపుగా 35-40 కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి. మేడం మీకు కంప్యూటర్ నేర్పిస్తుంది, మేడం మీకు అర్థమెటిక్ నేర్పిస్తుంది, మేడం మీకు బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ఏవైతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అవసరమో అవి నేర్పిస్తుంది. మనకు మహీంద్రా కంపెనీ నుంచి, రకరకాల కంపెనీ నుంచి, డాక్టర్ రెడ్డిస్ ల్యాబొరేటరీ నుంచి, రకరకాల కంపెనీస్ నుంచి జాబ్ మేళాస్ నిర్వహిస్తాం మన కాలేజీలో. అంటే డైరెక్ట్ గా ఉద్యోగ. సో ఆ గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటే జాబ్ మేళాస్ ద్వారా జాబ్స్ ఇప్పించేటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ మాది. అందుకు మేడం చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్. మేడం కోసం చెప్పగలండి. ఆఫీస్ స్టాఫ్ అమ్మా, మీ స్కాలర్షిప్లు కానీ, మీ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కానీ, మీకు రావాల్సినటువంటి ఏదైనా సరే ఆఫీస్ నుంచి మీరు స్వచ్ఛందంగా పొందొచ్చు. స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్లీ ఆఫీస్ స్టాఫ్ ఎక్కడన్నా ఉందా అంటే అది కేవలము గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ హైదరాబాద్ లోనే ఉన్నారు.
ఎన్ఎస్ఎస్ అని చెప్తున్నా కదా, ఎన్ఎస్ఎస్ యూనిట్ 1 రాములు సార్, ప్రీతి మేడం, ఉమెన్ ఎన్ఎస్ఎస్ కేవలం మతలబ్ స్త్రీలకు మాత్రమే, స్టూడెంట్స్ మతలబ్ ఉమెన్ స్టూడెంట్స్ కు మాత్రమే ఎన్ఎస్ఎస్ స్పెషల్ గా ఉంది. సో వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా ముజఫర్ సార్, ప్రీతి మేడం, రాముల్ సార్ ఎన్ఎస్ఎస్ నేషనల్ సర్వీస్ స్కీమ్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్. స్కాలర్షిప్ సెక్షన్ చూడండి, సీనియర్ యాక్టర్ లా ఉన్నాడు సార్. ఓకే, శ్రీనివాస్ గౌడ్ సార్. సో ఫస్ట్ ఇయర్ క్లాస్ ఇన్ఛార్జెస్ అంటే మీరు ఏ గ్రూప్ లో అడ్మిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఏ సార్ సంప్రదించాలో ఇక్కడ రాసిన చూడండి. ఆ ప్రకారం ఇంతకుముందు స్లైడ్ కూడా యా BA ఇంగ్లీష్ మీడియం, ఉర్దూ మీడియం, బీకామ్, BSc BSc వాళ్ళ పేర్లు గుర్తు పెట్టుకోండి అమ్మా. మీకు అడ్మిషన్ కావాల్సినప్పుడు అక్కడ వెళ్తే చాలు. సో దిస్ ఇస్ కాలేజ్ వెబ్సైట్. మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ జహీరాబాద్ అని కొడితే తక్కువ అక్కడ ఐపీ అడ్రస్ వస్తుంది. ఐపీ అడ్రస్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ విండో ఓపెన్ అవుతుందమ్మా. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎవరున్నారు, వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమేమి ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. ఇంకో ముఖ్య విషయం, మాకు సొంతంగా అంటే మన గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ సొంతంగా ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది. ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్లో 300 పైగా యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి, మీరు చూడొచ్చు. యా దీస్ ఆర్ ద కాలేజ్ యూట్యూబ్ యాక్టివిటీ ఛానల్. ఇప్పుడు జరిగే ప్రోగ్రామ్ కూడా రేపటి వరకు మీకు యూట్యూబ్ లో వచ్చేస్తుంది. సో వాట్సాప్ గ్రూప్, ఇది మాకున్నటువంటి కాలేజ్ GDC ZHP వాట్సాప్ గ్రూప్. మొత్తం స్టూడెంట్స్, ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అంతా కూడా ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఉంటారు. మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ వచ్చినా, ఏ విషయం కావాలన్నా కూడా ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ ద్వారా మీరు తెలుసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ జిమ్, మన దగ్గర జిమ్ ఉంది. మీరు పోయి బాడీ బైసెప్స్, ట్రైసెప్స్, సో యూ కెన్ గో అండ్ డూ జిమ్. అక్కడ మనకు కావాల్సినటువంటి క్యారమ్ బోర్డ్స్, తర్వాత షటిల్, వాలీబాల్ అన్ని కూడా మన కాలేజీలో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. బెంచ్ ప్రెస్ ఉంది మన దగ్గర. బెంచ్ ప్రెస్ ఏ కాలేజీలో ఉండదు. సో మన దగ్గర కూర్చొని బెంచ్ ప్రెస్, డంబెల్స్ ఉన్నాయి. ఇలా చేసుకుంటున్నారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ సే. నెక్స్ట్ అవర్ క్యాంపస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్, బాటనీ ల్యాబ్, జువాలజీ ల్యాబ్, అన్ని ల్యాబ్లు అన్ని కూడా అనుకోదు. మన కాలేజ్ వచ్చేసి గ్రీన్ క్యాంపస్. మన దగ్గర దొరికేటువంటి ఆక్సిజన్ ఎక్కడ దొరకదు. నెక్స్ట్ మీ ఆరోగ్యము మా బాధ్యత. అందుకోసమని మా ప్రిన్సిపల్, స్టాఫ్ మెంబర్స్ కలిసి మీకోసము RO వాటర్ ఫెసిలిటీ మన కాలేజీలో ఉంది. అంటే మినరల్ వాటర్, బిస్లరీ వాటర్ లాగా మన దగ్గర ప్యూర్ వాటర్ దొరుకుతుంది తాగడానికి. సో ఎవ్రీ టైం అవైలబుల్. Now I humbly invite my principal sir. ఎస్, మేము ఎంత చెప్పినా ఒక రకంగా ఉంటుంది. కానీ ఈ కాలేజీలో ఆల్రెడీ చదువుతున్న విద్యార్థులు వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ మీతో పంచుకుంటే మీకు నిజాలు తెలుస్తాయి. సో ఇప్పుడు మా కాలేజీ విద్యార్థులు పిలుస్తున్నాను. ఆఫియా నమీరా, BJC, 3rd BJC ఉర్దూ మీడియం. जनाब डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी सर और हमारे तमाम असातिज़ा इकराम और मेरे कॉलेज के अजीज साथियों और इंटरमीडिएट के अजीज साथियों, सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे बेहद खुशी और फख्र महसूस हो रहा है कि मैं आप सबके सामने मौजूद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यानी इस कॉलेज की तलबा होने के नाते अपने तजुर्बात और अपने ख्यालात को शेयर कर रही हूँ। आप सबको तलबा है जहाँ अपनी जिंदगी के एक निहायत अहम मरहले पर खड़े हैं, जहाँ आपके रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखी जाती है। मेरे अजीज दोस्तों, इंटरमीडिएट के बाद दिल
बात का कि आगे क्या होगा और उम्मीद इस बात की कि कुछ बड़ा और कुछ अच्छा और कुछ मुख्तलिफ करना है। यकीन मानिए, डिग्री कॉलेज वो जगह है जहां आप सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि अपने आप को खुद को पहचानना सीखते हैं, अपने अंदर छुपी सलाहियतों को दरियाफ्त करते हैं और एक बाएतमाद और बाकिरदार इंसान बनते हैं। ये कॉलेज एक ऐसा इदारा है जहां तालीम के साथ तरबियत और गाइडेंस भी दी जाती है। इस कॉलेज की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हमारे मोहतरम प्रिंसिपल सर तलबा से आजादाना और दोस्ताना अंदाज में बात करते हैं, तलबा की बात को सुनते हैं और उन्हें आगे बढ़ने की मुसलसल मोटिवेट करते हैं। इसी तरह हमारे तमाम लेक्चर्स भी तलबा के साथ निहायत खुश अखलाक, माऊन और सीधी राह दिखाने वाले हैं। यहाँ तालिब इल्म बगैर किसी खौफ के अपने मसाइल, सवालात और ख्वाब अपने असातिज़ा के साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे प्यारे तलबा, यहाँ BA, BCom, BSc और MPC जैसे अहम कोर्स दस्तयाब हैं जो आपको मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ने के मौके फराहम करते हैं। कॉलेज में एक बेहतरीन लाइब्रेरी मौजूद है जो इल्म के खजानों से भरी हुई है। इसके अलावा यहाँ जदीद केमिस्ट्री लैब, मुकम्मल ज़ूलॉजी लैब और मुअय्यरी बॉटनी लैब भी मौजूद है जहाँ अमली तालीम के जरिए तलबा के इल्म को मजबूत बनाया जाता है। ये कॉलेज फिजिकली हेल्थ को भी अहमियत देता है। यहाँ मौजूद जिम रूम जो तलबा को मजबूत और एनर्जेटिक बनाता है और स्पोर्ट्स जो खेलों के जरिए टीम वर्क, डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस सिखाता है। क्योंकि एक कामयाब तालिब इल्म के लिए सेहतमंद बॉडी और पावरफुल ब्रेन दोनों जरूरी है। मेरे अजीज दोस्तों, हमारे कॉलेज का माहौल निहायत खूबसूरत, साफ और पुरसुकून है। चारों तरफ दरख्त, हरियाली ही हरियाली मौजूद है जो हमें ऑक्सीजन फराहम करती है। ये माहौल न कि सिर्फ सेहत के लिए मुफीद है बल्कि पढ़ाई में दिल लगाने की मदद देती है। तालीम के मैदान में भी ये कॉलेज किसी से कम नहीं। यहाँ पर लेक्चर्स PhD क्वालिफाइड मौजूद है जो अपने इल्म, तजुर्बे और मेहनत से तलबा का मुस्तकबिल संवारते हैं। खुसूसी तौर पर यहाँ उर्दू शोबे में काबिल मुखलिस और तजुर्बेकार उर्दू लेक्चर्स मौजूद हैं जो हमें हमारी जबान, अदब, तहजीब और सकाफत से जोड़े रखते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मैं खुद इस कॉलेज की तलबा हूँ और पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कम मसाइल में भी बड़े ख्वाब देखना और उन्हें पूरा करना सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि हालात जैसे भी हो, अगर नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर कदम चूमती है। खुद पर यकीन रखो, रास्ते खुद बनेंगे। खुद पर यकीन रखो, रास्ते खुद बनेंगे। अंधेरी रात में भी सूरज निकलेंगे। मेहनत को अपना शुआर बना लो ऐ तालिबे इल्म। मेहनत को अपना शुआर बना लो ऐ तालिबे इल्म। यही चिराग है जो कल तुम्हें रोशन करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, कभी खुद को किसी से कम मत समझना। कभी ये मत कहना कि मेरे पास वसाइल नहीं है, बल्कि मजबूत इरादे हैं जो इंसान को आगे ले जाते हैं। अपने असातिज़ा का एहतराम करें, अपने वालिदैन की दुआओं को ताकत बनाएं और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाएं। आखिर में मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि अगर एक ऐसा इदारा चाहते हैं जहां मुअय्यरी तालीम हो, बेहतरीन सहूलतें हो, दोस्ताना और काबिल असातिज़ा हो और सेहतमंद पुरसुकून माहौल हो तो डिग्री कॉलेज आपके लिए बेहतरीन इंतखाब है। अल्लाह ताला आप सबको इल्म, हौसला और कामयाबी अता फरमाए। अपने आप को, अपने वालिदैन, असातिज़ा और कौम का फख्र बनाएं। शुक्रिया। आफिया नवीन अभी बात करते ही आपको मालूम हो गया कि कितना गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में कितने अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। तो अभी मैं अगली गाइड के सेकेंड ईयर से निवेदन करता हूँ वो हमारे कॉलेज के बारे में बताएं। అందరికీ నమస్కారం. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. మస్తు హుషారుగా ఈ కాలేజ్ నా పేరు గాయత్రి, బీకామ్ సెకండ్ ఇయర్. ఈ కాలేజ్ లో BA, BCom, BSc, BSc ఆల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ తెలుగు మీడియం, ఇంగ్లీష్ మీడియం, ఉర్దూ మీడియం అన్ని మీడియంస్ కూడా ఉంటాయి. కంప్యూటర్స్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. ఇప్పుడున్న జనరేషన్ లో పుస్తక జ్ఞానంతో పాటు కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి కంప్యూటర్ ల్యాబ్ లో ఉన్న కంప్యూటర్స్ తో పాటు TSPSC లో కూడా కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి. కంప్యూటర్స్
4:30 వరకు గేమ్స్ కూడా ఆడుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనకి కాలేజ్ టైమింగ్ వచ్చేసి 10 నుంచి 4:30 వరకు. మనకి క్లాసెస్ 3 o'clock అట్లా అయిపోయినా 3 నుంచి 4:30 వరకు గేమ్స్ ఆడుకోవచ్చు. ఇంకా ఫ్రీ వాటర్ కూడా చాలా నేర్చుకుంటాం. ఇక్కడ ఎన్ఎస్ఎస్ సర్టిఫికేట్ కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎన్ఎస్ఎస్ సర్టిఫికేట్స్ ఉంటుంది. మేము క్యాంప్కి వెళ్ళినాం, కంప్లీట్ అయిపోయినాక సర్టిఫికేట్ కూడా ఇచ్చారు. మీరు ఫ్యూచర్ లో జాబ్ ప్రిపేర్ అయినప్పుడు ఆ సర్టిఫికేట్ కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఈ కాలేజ్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల జయగాల్ మా కాలేజ్, కాబోయే మీ కాలేజ్ కూడా. ఈ కాలేజ్ విద్యతో పాటు విజ్ఞానాన్ని కూడా నేర్పిస్తుంది. ఎందుకంటే తక్కువ ఈ కాలేజ్ గురించి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ Sabia. Subia. Principal sir, respected principal sir, teachers, and my dear super juniors, good morning and assalamu alaikum to all. A warm welcome in our college, Government Degree College of Zakirabad. My name is Surya and I am studying in BSc second year, Government Degree College of Zakirabad. So we have in our college all groups and well study, well lecturers, well faculties. So we all students in this time, all students have goals in their life. All people have goals in their lives. People have or not goals in their life, in your life. I'm asking question to you. Okay, so if you people have goals in your life, so we have opportunity to achieve them, and we have the best college to success in your life, and this college is best, and our principals are so supportive to understand them. Okay, so I'm completing my speech. डॉक्टर राफिया मैडम, सोलजी मैडम अभी बात करेंगे. मेरे कॉलेज में से पहले गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करके आपके कॉलेज में पढ़ा. तो मैडम से मैं निवेदन करता हूँ कि आप बात करें. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं आप तमाम से गुजारिश कर सकती हूँ कि आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेकर सिर्फ और सिर्फ फायदा हासिल करेंगे. ये मैं इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर ऑलरेडी टीच करके गई हुई हूँ. तो यहाँ का माहौल आपको मुतमईन तौर पे, मुकम्मल तौर पे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए काम आ जाए. आप यहाँ पर न सिर्फ तालीम हासिल करेंगे बल्कि ये एक तहजीब का भी गहवारा है. अगर आपको किसी किस्म का मसला पेश आ रहा हो तो आपके पास ऐसे लेक्चरर्स मौजूद हैं जो आपको तालीम के साथ साथ आपके हर मसले का हल भी बताएंगे. यहाँ अगर आप एडमिशन लेंगे तो ये आपका फ्यूचर का सबसे अच्छा कदम कह सकते हैं. आप किसी भी मैदान में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपके लेक्चरर्स हर तरह से सपोर्टिव है. तो आप कोशिश करिए कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले और यहाँ से फायदा हासिल कीजिए. थैंक यू. अभी जूनियर कॉलेज से अजरा सुल्ताना फीडबैक देने के लिए आई.
सुजाना है और मैं बाईपीसी सेकेंड ईयर की तालिब हूँ और जूनियर कॉलेज की तालिब हूँ ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमें बहुत ही दिलचस्प और मददगार साबित हुआ है हमारे लिए, क्योंकि इसमें हमारे जो भी सवाल और जो भी डर वगैरह है उसके तमाम को खत्म किया है और इसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स वगैरह आगे चल के क्या है इसके लिए भी हमें बहुत मददगार साबित हुआ है ये। ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ही अहमियत के हामिल था और हमें बहुत ही दिलचस्प लगा। थैंक यू सो मच। Thank you all. अभी जुवेरिया मेरा नाम जुवेरिया अंजुम है। मैं जूनियर कॉलेज हैदराबाद बाईपीसी सेकेंड ईयर उर्दू मीडियम की तालिब हूँ। यहाँ आके हमें जो इंटरमीडिएट के बाद की जो तालीम हासिल करनी होती है उसके तमाम सवाल जो भी दिमाग में हमारे कौन से कोर्स करना है वगैरह वगैरह जैसे सवाल आते हैं हमें वो दूर हो चुके हैं। इस प्रोग्राम के तहत जो भी हमें मालूमात है उससे बहुत मदद हासिल हुई है। थैंक चलिए, गुड आफ्टरनून। आज का ये जो सेशन था आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। 2 मिनट एज ए प्रिंसिपल में बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि हमारा जो यूथ है, आप लोग है, आपको ज्यादा से ज्यादा और अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले। गवर्नमेंट वांट्स टू एजुकेट आवर यूथ इन ए प्रॉपर वे। इसके लिए मैं जो है डिग्री कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। मेरे ऊपर कमिश्नर कॉलेज एजुकेशन है और कमिश्नर इंटरमीडिएट भी है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर है। सो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मीटिंग लेकर हमको कहा है कि यू गो टू द इंटरमीडिएट कॉलेज और इनवाइट देम टू अवर कॉलेज एंड शो व्हाट फैसिलिटी यू आर प्रोवाइडिंग टू देम। ये गवर्नमेंट के आदेश प्रकार ये प्रोग्राम हो रहा है, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दी है। और आज की दुनिया में अगर हम नॉलेज नहीं रखते हैं तो पीछे रह जाते हैं। तो आपको नॉलेज देने के लिए और आपको फ्यूचर का जो रास्ता बताने के लिए प्रोग्राम कराया गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको सेटिस्फैक्शन दिया होगा। अभी जो पीपीटी बताया गया है, ये पीपीटी आपके लेक्चरर को हम देंगे और वो आपको व्हाट्सएप पे देंगे। और आपको करना क्या है, आप पीसफुली यू हैव टू प्रिपेयर योर इंटरमीडिएट एग्जाम। और आपको 900 मार्क्स वाले हमारे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे जूनियर कॉलेज से आए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी अबव 900 के स्टूडेंट रहेंगे। आप लोग नीट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, इंडिविजुअल हमारे पास आइए, हमारे लेक्चर आपको बात करेंगे और फर्दर एजुकेशन जो है वो भी बात करेंगे। और डिग्री कॉलेज में जो एडमिशन का प्रोसीजर है ये आपको आज बताया गया है। आपके माइंड में थोड़ा सा टेंशन है, अभी हमारा इंटर का एग्जाम है, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद हमको डिग्री पे एडमिशन लेना है। लेकिन हम हमारी तरफ से गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पे आपको एक इंफॉर्मेशन दिए हैं। आज टुडे वी हैव प्रोवाइडेड एन इंफॉर्मेशन व्हाट इज द पाथ अहेड फॉर यू। आपको आगे रास्ता क्या है। देखिए आजकल जो सोसाइटी में हो रहा है, ये रूम में भी देख रहा कि हमारे पास 90% गर्ल्स आर स्टडिंग, 10% बॉयज आर स्टडिंग। अभी यहाँ पर भी 3 इधर है, 75%, 25% है। तो गर्ल्स आर डूइंग वेरी वेल, क्लैप फॉर योरसेल्फ। तो लाइक राबिया मैडम टोल्ड के ये कॉलेज एक फैमिली है, जीडीसी जहीराबाद फैमिली। यू आर मोस्ट वेलकम मेंबर ऑफ दिस फैमिली। మీకు वेलकम చేస్తున్నారు మనం। तो आप सबका जो है वेलकम है। डोंट बी फियर, आप परेशान मत होइए। आप चाहते हैं कि फ्रेंडली कॉलेज है, बिफोर एग्जाम भी यू कैन कम विद योर फ्रेंड एंड क्लियर योर डाउट्स। यहाँ पर आ सकते हैं। आवर कॉलेज डोर्स आर ओपन टू यू। वी आर हैविंग वेरी
good RO water facility. If you want pure water, come to our college, pay your water and go to your college. तो ये आप सेम बाउंड्री में ये कॉलेज है, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज। और जूनियर कॉलेज की खास बात क्या है कि 800 अराउंड स्टूडेंट पढ़ रहे हैं आप लोग। सो बेस्ट विशेस फॉर यू फॉर योर इंटरमीडिएट एग्जाम, बेस्ट विशेस फॉर यू टू टेक एडमिशन इन आवर कॉलेज। यू कैन बिकम डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, वॉट एवर विश यू आर हैविंग। देखिए कि आज इंटरनेट का जमाना है, तो आप इंटरनेट में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए पूछ सकते हैं। जो लोग सेकंड लैंग्वेज उर्दू पढ़ रहे हैं, आपकी टेक्स्ट बुक खोलिए, पेज नंबर 2 या 3 पे नेम्स रहते, तो जो सिलेबस कमेटी का जो नेम्स है उसमें मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी, आई एम द सिलेबस कमेटी मेंबर। और रिसेंटली वी हैव ड्राफ्टेड द न्यू सिलेबस फॉर नेक्स्ट ईयर, उसमें भी मेरा नाम। तो आप जो है गूगल में मेरा नाम मार के भी देख सकते हैं, AI को भी पूछ सकते हैं और आपको जो भी डाउट। सो टुडे सेशन इज इंफॉर्मेटिव यू, डोंट बी फियर, आप लोग परेशान मत हो जाइए। और वेलकम टू जीडी जहरा। अब ये सेशन हो गए बाद स्टेप कैसे नीचे उतर के फर्स्ट आपको कंप्यूटर लैब देखना है, फिर जिम देखना है, थोड़ा सा हमारा ग्रीनरी देख लेंगे, लाइब्रेरी देख के आप अपने कॉलेज को जाए, तभी सब आप जाइए। सो అందరు గుంపులుగా బయటికి పోవద్దు, ఇద్దరిద్దరుగా వెళ్ళండి. ప్రిన్సిపల్ సార్ అండ్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఆర్ గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ మేడం డాక్టర్ రాజేంద్ర మేడం, మిస్ మేడం, థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్.